So continuing from where we have left in the previous lesson, we are doing the shapes of molecules, and we have discussed the shape of molecules having two pair of electrons and then three pair of electrons. Now we are going towards a next domain in which we will see that the central atom is surrounded by four pair of electrons. So total domains means total number of electron pairs will be four. And when we have four pair of electrons, so the first category of this is AX4. तो AX4 में हम देख रहे हैं कि A is a central atom and it is surrounded by four bond pairs and no lone pair. In such a case, now these four bond pairs, they arrange themselves in a three-dimensional arrangement. इससे पहले before that in 1, 2 and 3 domains you have seen that all the shapes are in a single plane, but now the bonds will be directed in three planes. These will be in three dimension. तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये थ्री डायमेंशन में आपको दिखाई देगी 3D. Now it's going to be a three-dimensional diagram, and this whenever you have four bond pairs on the central atom and no lone pair, this three-dimensional shape is called tetrahedral shape. And the examples of such molecules having tetrahedral shapes are alkanes. All alkanes, for example, CH4 or C2H6, C2H6, and so on. All alkanes. इसके अलावा you can have one hydrogen or two hydrogen displace कर दें CH4 से. So for example CH3Cl भी हो सकता है. उसके अलावा CHCl3 भी हो सकता है. उसके अलावा CCl4 भी हो सकता है. ठीक है. तो इसमें ग्रुप 4 वाला कोई और भी ले सकते हैं जिसमें SiCl4 भी हो सकता है. तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये दिस गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ टेट्राहेड्रल शेप बिकॉज इन ऑल दीज एग्जांपल्स द सेंट्रल एटम व्हिच इज कार्बन इन एल्केन्स, if you have a more than one carbons, all the carbons will have tetrahedral arrangement. And then SiCl4 or CCl4, so carbon is surrounded by four bond pairs. When you have four bond pairs, तो आपकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होगी. और उसकी बॉन्ड एंगल को आप देखें तो बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्री. 109.5 डिग्री में आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा. द टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल्स आर 109.5 डिग्री. इफ आई गो टू दिस शेप, सो एक्स बॉन्ड एंगल, ये सारे बॉन्ड एंगल जो हैं, ऑल दीज बॉन्ड एंगल्स, कोई भी आप ले लें एक्स बॉन्ड एंगल, all these bond angles are of 109.5 degree. So I'll try to draw this more clear in front of you in this side screen. तो अगर मेरे पास जो है वो एक x है and then थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं जी. This is x, then I have a in the center, then I will have another x, then I will have another x, and I will also have another x. And now see, two bonds out of these four bond pairs are in the same plane. So I will draw them as a solid line between x and a. These two are in the same plane and their bond angle is 109.5 degree. Then one of them is coming out of the plane. If you are drawing on your copy, so one of them is coming out of the plane and we show it as a wedge. We will show it as a wedge. And one of them is going into the plane of the copy and we draw it as a dotted line. So
So this is the actual diagram of tetrahedral structure, which is not very clear in that picture, but now I have drawn it in front of you. Two solid lines show that they are in the same plane. अगर आप पिक्चर में देखोगे तो एक ब्लैक से रंग का डार्क कलर में है, वो वेज है, एंड दैट वेज is coming out of the plane towards you, and this is a third bond pair, and the fourth bond pair is going into the plane, into the copy or into the board, and that's why we draw it as a dotted line. So wedge चूंकि वो आपकी तरफ आ रहा है, तो देख रहे हैं wedge 3 डायमेंशन में wedge जब आपकी तरफ कोई चीज आ रही है तो बड़ी होती है, जो आपसे पीछे जा रही होती है वो छोटी हो जाती है. तो हम छोटा तो नहीं दिखा सकते, हम डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, और जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको हम वेज से दिखा देते हैं. सो all these bond angles, XAX bond angles are of 109.5 degree. आप कोई भी ले लें, यहाँ पे ये वाला ले लें, ये ले लें, ये ले लें, या ये ले लें. All these bond angles are of 109.5 degree, and we call this shape as tetrahedral. अब आपने करना क्या है, बजाय इसके में आपने मीथेन ड्रॉ करना है, तो A is your C and H are 4 axes. ठीक है जी. SiCl4 करना है तो A is your Si and 4 Cls are your X. CHCl3 करना है तो C is your A, one of the X is H and remaining 3 are your Cl. ठीक है, तो तस्वीर यही ड्रॉ होगी. तो प्लीज लर्न टू ड्रॉ दिस डायग्राम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर आपने ओ लेवल्स में डायमंड के लिए पढ़ा था, बट इन डायमंड A is C and all X's were also C, because diamond is an element, it is made up of carbon atoms. So all these X's are C, 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 and central one was also C. So उसमें से फर्क ये था, बाकी शेप यही थी टेट्राहेड्रल शेप, and bond angle is 109.5 degree. I hope you have you will learn to draw this diagram is here. After that, we will go to the next category of remaining in four pairs of electron is AX3E. In AX3E, it means that you have now 3 bond pairs and 1 lone pair. अब 1 lone pair देखें तो AC में से किसी एक को हम जो है वो lone pair बना देते हैं. सपोज मैंने इसको जो है यहाँ पर lone pair कर दिया, ये X की जगह lone pair आ गया. अब जब ये lone pair आ गया तो इसने तो बहुत बड़ी सी जगह ले लेनी है, और जब ये बड़ी सी जगह ले लेगा तो इनिशियल स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल से ही बना है, लेकिन अब ये शेप टेट्राहेड्रल नहीं रही, बल्कि इस एक लोन पेयर ने क्या किया है, जो अपने साथ प्रेजेंट हैं बॉन्ड पेयर्स, उनको पुल किया है, सॉरी पुश किया है अपने से अवे. इट हैज पुश्ड इट अवे फ्रॉम दिस लोन पेयर, ड्यू टू विच द बॉन्ड पेयर्स विल कम स्लाइटली क्लोजर, एंड देयर बॉन्ड एंगल जो कि पहले 109 के थे, अब वो बॉन्ड एंगल जो हैं वो कम होकर यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आपके पास जनरेट होगा वो 107 का होगा. 107, 109 से रिड्यूस होकर इट हैज गॉन डाउन टू 107. ठीक है जी. तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल जो थे वो 109.5 के थे, 109.5 डिग्री के थे, लेकिन अब जो ये शेप बन रही है जिसमें एक ऊपर लोन पेयर आ गया, वो लोन पेयर हम नहीं दिखाते, तो अब की जो शेप बन रही है दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल, एंड इन ट्राइगोनल पिरामिडल द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 107 डिग्री. मैं आपके सामने ट्राइगोनल पिरामिडल की शेप भी ड्रॉ करता हूँ. उसमें ए, अब ऊपर वाला बॉन्ड सपोज मैंने लोन पेयर में निकाल दिया है, तो अब आपके पास सिर्फ ए है, ऊपर तो लोन पेयर है, उसको हम नहीं ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आपके पास वो बाकी रिमेनिंग आर देयर एक्स, तो बाकी सब वहीं पर हैं. So I'm going to draw one line as this, one dotted line as this, वो वही है, और एक wedge भी वही है. ठीक है जी. तो अब जो बॉन्ड एंगल्स आपके पास जनरेट हो गए हैं,
XAX बॉन्ड एंगल, ये उस लोन पेयर की वजह से, जो यहाँ पे एक लोन पेयर बैठा हुआ था जिसको हमने डायग्राम में ड्रॉ नहीं करने की जरूरत होती, और इसमें बड़ा सा जिन बनाया हुआ है हमने इसको, ये इन बॉन्ड एंगल्स को रिड्यूस डाउन कर जाता है टू 107 डिग्री पे। दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिड। इसकी एग्जांपल में यू हैव सीन PH3, इसमें NH3 भी आएगा, NH3, PH3 के बाद NH3, ठीक है जी, NCl3, NCl3, PCl3, PCl3, ठीक है, etc. All these are the examples of AX3E ट्राइगोनल पिरामिडल। इन सब में आप देखिएगा नाइट्रोजन पे देयर इज अ लोन पेयर, एंड इन फास्फोरस इन PCl3 देयर इज अ लोन पेयर। Then we have next category. We have next category which is AX2E2, AX2E2, which suggests that now you have two bond pairs and two lone pairs, two bond pairs and two lone pairs. तो इस कैटेगरी में जब हम आ रहे हैं, टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स, तो आप देखिए कि एक और आपका जो एक्स है इसमें से टेट्राहीड्रल से स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम टेट्राहीड्रल एज यू हैव 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट टू पेयर्स जो हैं वो लोन पेयर पे निकल जाएंगे। तो फिर आपके पास, सपोज करें मैं इसको भी यहाँ से हटाकर जो है ये ख़त्म कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम जो है वो एक लोन पेयर ड्रॉ कर लेते हैं। तो लोन पेयर अगर आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये लोन पेयर क्या करेगा, आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको और ज़्यादा रिपेल करेगा, और फिर आपके पास सिर्फ ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये बचेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं रहा, यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं रहा, सो दिस इज़ द बॉन्ड दैट इज़ लेफ्ट, दिस इज़ द बॉन्ड दैट इज़ लेफ्ट। और ये बॉन्ड और छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी शेप जो है अब वो बन जाएगी बेंड या वी बेंड शेप, और बॉन्ड एंगल 107 से और छोटा होके बन जाएगा 104.5 डिग्री पे। तो शेप इज कॉल्ड बेंड, एंड यू सी कि यहाँ पर इस तस्वीर में भी अगर आप देखेंगे जो डायग्राम यहाँ बनी हुई है, कि ये जो बॉन्ड एंगल बचा है आपके पास, ये 104.5 डिग्री का रह गया है। इसकी एग्जांपल के अंदर वाटर, इसकी एग्जांपल के अंदर H2O, H2S, ठीक है जी, उसमें ऑक्सीजन के और सल्फर सल्फर के नीचे सेलेनियम भी आता है, तो H2SE, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं उसमें आ जाती हैं। इसके अलावा आप जो है वो OF2, OF2, ठीक है जी, और इसी तरह SF2, SF2, etc. These all have the same structure. आप एक ही जगह O या S या SE लगाओगे, और दोनों X की जगह पे H2 दो H लगा लो या दो F लगा लो, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको कर लोगे। The shape is called bed shape, and the bond angle is now 104. So water में you have seen in oxygen there are two lone pairs and two bond pairs. These two bond pairs are arranged at an angle of 104.5 degree, and the shape is called bend. The shape is called bend shape. Okay, any question up till now? Because now we are going towards the next domain, which is 5. So for 5 pair of electrons, I'm now moving to 5 pair of electrons. If 5 pair of electrons, the first category is that there are all, yes Abdullah, सर AX3 वाला आपने मिस वो कर नहीं दिया। करवाना, उसकी वो करने की जरूरत नहीं है, वो लीनियर रह जाएगा, क्योंकि when there are 3 lone pairs and only 1 bond pair, तो वो लीनियर रह जाएगा, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट हम आ रहे हैं जी AX5 के ऊपर। इन AX5
it means that central atom is now having 5 pair of electrons. और अभी आज we have just revised in the previous class, we have learned about octet extension. So we have studied about PCl5. We have studied about PCl5, in which phosphorus is bonded with 5 chlorine atoms by 5 single covalent bonds. So in that case, PCl5 is an example of AX5. A is your P and all X are your Cl atoms. If you see the diagram, it will show कि एक वही trigonal plane है आपके पास, लेकिन एक bond and one of them is a bond is vertically upward and vertically down to that as well. This shape is called trigonal bipyramid. ट्राइगोनल बेस के ऊपर भी एक बॉन्ड है एंड देयर इज अ बॉन्ड बिलो दैट. तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल. एक पिरामिड ऊपर निकल जाएगा, एक ट्राइगोनल पिरामिड नीचे आ जाएगा, सो इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, आपने कहा था ना ट्राइगोनल, सो इन बिटवीन द ट्राइगोनल, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है जिसको मैंने ब्लू से अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड्स हैं ये सारे 120 डिग्री के. और अब मैं कुछ बॉन्ड जो हैं उनको रेड से सर्कल करूंगा, रेड से हाईलाइट करूंगा. ये जो बॉन्ड है ये 90 डिग्री के. तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो वर्टिकल जो ऊपर नीचे हैं उनमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं, जबकि ट्रायगोनल प्लेन की जो प्लेन शेप है दरमियान में उसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स, 90 डिग्री भी है इसमें और 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स भी हैं, दोनों लिखने हैं आपने. इसकी एग्जांपल में PCl3 आता है. Then in 5 domain, the 5 pair of electron, the second category is AX4E. AX4E. तो यहाँ AX4E आ गया आपके पास, तो एक लोन पेयर भी आ गया, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. तो हम शेप स्टार्ट ट्राइगोनल पिरामिड से, बाई पिरामिड से ही करेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें एक लोन पेयर आ जाएगा तो ये शेप अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं रहेगी, हमारी स्टार्ट यहीं से होगा. इसको हम सी सॉ कहते हैं. तो ये सी सॉ में देखें हमने इस जगह पर ये जो वन ऑफ द एक्स है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू लोन पेयर. तो सपोज करें इसको हमने लोन पेयर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर आ गया. तो अब ये जैसे सी सॉ का अगर आप ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये आपके सी सॉ का नीचे बेस बन गया, और ये जो लाइन है ये दोनों लाइनें एक साइड पर एक बच्चा बैठा है, दूसरे पर दूसरा बच्चा बैठा है. तो इट लुक्स लाइक टू बी अ सी सॉ. So one kid is an X, the other kid is an X, and the two kids, as no, these are not kids, these are just a support. So this is called seesaw. इसकी एग्जांपल में selenium SeH4 selenium comes in group number 6. तो अगर आप उसके 4 बॉन्ड्स बना दें तो उसके पास एक लोन पेयर फिर भी बच जाएगा. तो आप ऐसा SF4 में भी कर सकते हैं. यू कैन डू दैट इन SeH4. आप SH4 भी कर सकते हैं, ठीक है जी. SF4 भी कर सकते हैं, ठीक है जी. तो लेकिन ऑक्सीजन में नहीं जा सकते. ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं होता, इसमें ऑक्टेट एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए सल्फर सेलेनियम में ऑक्टेट एक्सटेंशन हो सकती थी, तो इसलिए हम उसमें जा सकते हैं. ऑक्सीजन की एग्जांपल यहाँ नहीं आएगी. तो ये एग्जांपल में प्लीज लर्न टू ड्रॉ दिस डायग्राम. देन वी हैव अनदर केस AX3E2. AX3E2 के अंदर अब आपके पास यू सी देयर आर 2 लोन पेयर्स. हमने इसके अंदर 2 लोन पेयर, ये एक ये ड्रॉ किया हुआ है और एक ये ड्रॉ किया हुआ है. देयर आर 2 लोन पेयर्स. तो फिर आपके पास बाकी क्या बचा है, सिर्फ T. तो T शेप इसको हम कहते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड T शेप. और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं उसको भी देख लेते हैं. अच्छा, सी सॉ वाले के अंदर जो बॉन्ड एंगल्स थे उसमें अभी भी 120 डिग्री वाले थे और उसमें 90 वाले भी थे. लेकिन जब हम T शेप में आ गए हैं तो T शेप में आपके पास अब जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो सिर्फ 90 के रह गए, 90 ओनली.
इसमें अब 120 वाला जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये 90 डिग्री ओनली रह गया है। दिस इज कॉल्ड टी शेप। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है ICl3। ICl3 iodine is in group number 7। it has 7 electrons in outermost shell। उसमें से उसने 3 शेयर कर लिए हैं। इसमें भी ऑक्टेट एक्सटेंशन हो रही है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये फ्लोरीन कर सकेगा। क्लोरीन से ऑनवर्ड ये कर सकते हैं। ClI3 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, ClBr3 हो सकता है, या BrCl3 भी हो सकता है। तो ये ग्रुप 7 वाले जब आपस में बॉन्ड बनाएं तो यूजुअली दे फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बट ड्यू टू ऑक्टेट एक्सटेंशन दे कैन ऑल्सो फॉर्म ICl3 और BrCl3। और इस केस के अंदर फिर आप देखोगे कि योर सेंट्रल एटम हैज 3 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर। देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, उनमें से अगर आपने 3 बॉन्ड में इस्तेमाल कर लिए तो 7 में से 3 चले गए तो बाकी 4 रह गए, तो 2 बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे, 2 लोन पेयर्स बन जाएंगे सॉरी, और 3 बॉन्ड पेयर्स। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। एंड फाइनली I'm going to finish the class as well after that। that is domain number 6। In domain number 6 we will study only one type, AX6। AX6 की जो एग्जांपल है उसमें SF6 हमने बनाना सीखा था ऑक्टेट एक्सटेंशन से। SF6, SeF6, SeCl6 आ सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं आ सकता। The shape is called octahedral। the shape is called octahedral and if you see the shape तो आपको नजर आएगा कि एक स्क्वायर बनी हुई है बेस और उसके ऊपर और नीचे एक वर्टिकल बॉन्ड एंगल्स हैं। ये मैं आपको यहाँ फिर से खुद से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सपोज करें कि आपके पास जो है वो देर आर 6 एक्सेस। तो ये एक एक्स मैं आपके पास ला रहा हूँ। आफ्टर दैट आई हैव अनदर एक्स, थर्ड एक्स आ गया। उसके बाद आई हैव एन ए, ठीक है जी। उसके बाद फिर मेरे पास एक एक्स आ गया और एक और एक्स आ गया एंड देन आई हैव अनदर एक्स, ठीक है जी। अब इसमें हम जो है वो बॉन्ड्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें दो, एक आपके पास बन रही है स्क्वायर बेस, मैं आपको दिखाऊंगा वो स्क्वायर बेस कैसे है। इसमें से जो, इसको ब्लू कर लेते हैं। ओके, so all the bond angles in this shape are of 90 degree and there is a square base of 4x. Out of these two bonds are coming towards you, two bonds are going inside the board, and two bonds are, one is vertically up and one is vertically down. So this shape is called octahedral shape. This shape is called octahedral shape and all the bond angles is of 90 degree, and please learn to draw this diagram as well. So this will conclude, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। This will conclude your shapes of molecules. I will also now show you some diagrams, some pictures of these molecules, so that you can have a better understanding. So let's see. If you now you can see
This, I'll start off with the आसान वाले से करते हैं जी. This is your linear shape molecule. In this AB2 या AX2, so you can see a linear shape molecule. A is surrounded by two bond pairs, and these two bond pairs are linear, and bond angle is 180 degree. And then I'll be moving on towards this. This is called trigonal planar. So trigonal planar looks like this. All the bond angles are of 120 degree. This is trigonal planar shape. Then let's move on to this. Before that, okay, this is the shape of tetrahedral structure, and this is the molecule of ethane in which two carbons are bonded to 3H on one side and 3H on the other side, and one carbon is bonded to the other carbon. So there are four single bonds, and this shape is called tetrahedral shape. Both these are tetrahedral shapes that can be seen. Then comes from the tetrahedral shape, there can be a lone pair in tetrahedral. तो आप देख रहे हैं कि ये जो green रंग का एक पत्ता सा बना हुआ है, this leaf is basically a lone pair occupying a large space, and there are three bonds of the tetrahedral shape now are called pyramidal shape, and their bond angles are reduced to 107. So this is a shape of ammonia molecule. So ammonia molecule, this is a shape of ammonia molecule in which the bond angles are of 107 degree and the shape is called pyramidal shape. Then we will move on to this. This is again derived from tetrahedral shape, but due to two lone pairs, one is given by blue leaflet and the other by a green leaflet. These two occupy a very large space, due to which the remaining two bond pairs shown by sticks come closer to each other and the bond angle reduced down to 104.5. And we can see that in the second other piece of apparatus जिसमें आपको ये bend shape में नजर भी आ रहा है. And after that, this is the shape of octahedral जो भी हमने किया था. If you see, there are four bonds which are in the same plane, and one bond is vertically coming above and the other is going down. This is the shape of octahedral. And this is the shape of trigonal bipyramidal, in which you can see there are three green balls हैं, they form a trigonal planar, but one white ball is coming up and one ball is going down. So two bonds are vertically placed up and down the trigonal, so it is called trigonal bipyramidal. ठीक है जी, तो this concludes all these diagrams जो आपने देखी थी. आपको मैं उनको लाइव ड्रॉ करके जो है वो दिखा रहा हूँ using ball and stick models. So these models are quite clearly representation. So if you see in this diagram, you will see that there are methane molecules lying at the back as well, in which carbon is black and four white circles are your hydrogen atoms. So I believe this is a good representation, and I end this here.